Hello everyone, welcome to the first tutorial of chapter 7. In this tutorial, uh, we are going to discuss content of exercise 7.1. So in these tutorials, we will be focusing on problem solving rather than the concepts. उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे. If you are confused or if you are not able to understand anything, उसके लिए आप lecture note follow कर सकते हैं and you can ask me questions during the class and afterwards. So in chapter 7.1, in this part of the tutorial, I'm going to focus on some few definition of matrices and some special matrices. So if you already know this, what is matrix and what are the type of matrix, then you can skip this tutorial. So let's start. What is a matrix? So matrix की बड़ी आसान सी definition की जाती है. So in very simple terms, if we write some numbers like 1, 2, 3, these numbers are real numbers, like maybe 5.2, 6, and we put some square brackets around it and assign a capital alphabet. This is convention. Then we call this a matrix. So this is a matrix, right? But in matrix, it is not necessary that inside the square brackets these numbers are real numbers. These numbers can be uh, functions as well, such as f of x, I don't know, g of y, h of x, something like that, and t of y. So something like that. So it can also be a function. So the entries of the matrix can also be function, right? So जो matrix के constituents हैं इनको हम entries बोलते हैं. So these are entries, right? और इनको elements भी बोला जाता है. Okay, so matrices की, of course, there are many applications. For example, these are used to, if we have, imagine, large set of data and you want to write in some concise fashion, concise data representation के लिए use होते हैं. Then we also use this for solving system of linear equations, solving system of linear equations. And these linear equations are really important because they show up in many different subjects. For example, this system of linear equations can show up in electric circuits. For example, circuits like this. So if we model a circuit using KVL, current law and voltages law, then the equation we write are those equations which are linear, right? So matrices की बहुत applications we have discussed in the class. I'm not going to in details. आप उसके लिए slides देख लो. यहाँ पे एक चीज़ जो हम देख सकते हैं which I want to mention here is कि पहली चीज़ वो ये कि what is order of a matrix, right? Order क्या होता है matrix का? Order matrix का जो number of rows or number of columns होते हैं. For example, in this case we have 1, 2 rows, 1, 2 columns, right? तो इसका order जो हम लिखेंगे, पहले rows लिखते हैं 2 cross 2. So this is an order of matrix. In general, order of a matrix is written like m cross n, where m are rows and n are columns. So for instance, if I write a matrix, let's call this matrix C, such that 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. So what will be the order, right? So in this case, we have 2 rows. So the order of matrix will be 2 cross, and how many columns? 1, 2, 3, 4. 2 cross 4. So this is the order of the matrix, right? So let's move forward.
अब यूजुअली जो मैट्रिक्स होते हैं वो हम कुछ डेफिनेशंस अब जो देखेंगे, सो वी विल सी फ्यू डेफिनेशन जो स्पेशल मैट्रिसेस हैं उनकी मैं कुछ बिकॉज यू शुड बी फेमिलियर विद सम डेफिनेशंस। तो अब मैं आपको कुछ मैट्रिसेस जो स्पेशल इन अ वे कि ये बार बार हम यूज़ करेंगे, इन दैट सेंस स्पेशल, राइट, नथिंग एल्स। सम स्पेशल मैट्रिसेस वो कौन से हैं, मैट्रिसेस वो कौन से हो सकते हैं? So let's have a look at some of the special matrices we had considered again and again. So at the beginning, the most common one, not the common one, but most the easier one is identity matrix, right? तो identity matrix वो होता है जिसके जिसके डायगोनल पे वन हो और ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे ज़ीरो हो। अब मैंने वर्ड यूज़ किया डायगोनल, सो व्हाट इट मींस डायगोनल, राइट? तो ये जो मैंने हाईलाइट किया, दिस इज़ कॉल्ड मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। तो डायगोनल मींस entries or elements in which A11, A22, A33 एंड ANN, मतलब जिसमें रो और कॉलम की वैल्यू सेम हो। जैसे इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसमें आप देखो तो ये 1 आ रहा है। दिस एंट्री इज़ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये क्या होगा, दिस इज़ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो A11, A22 एंड सो ऑन। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सिर्फ ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो हो, और ऑफ डायगोनल सारे ज़ीरो हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, राइट। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, फॉर एग्जांपल 1 1 1, ये मेन डायगोनल हो गया। बाकी जो इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो मैंने ये ऑरेंज कलर में बनाए, तो इसकी 3 रोज़ हैं 3 कॉलम है, राइट। टोटल एलिमेंट्स इसमें 3 रोज़ 3 कॉलम, 9 एलिमेंट्स होंगे। तो जो डायगोनल पे हैं, इफ़ यू सी ओनली द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो, तो सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, सेकंड टाइप क्या होगी, और स्पेशल मैट्रिसेस देख लेते हैं। इसी से मिलता जुलता आइडिया है, वो है, let's call that diagonal matrix. What is a diagonal matrix? डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें मेन डायगोनल पे एंट्रीज नॉन ज़ीरो हो। तो फिर आइडेंटिटी और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस हुआ? तो लेट्स राइट अ डायगोनल मैट्रिक्स, मैं फिर बताता हूँ आपको। सिंपल ले लेते हैं, 2x2 लिखना आसान होगा। जैसे 3 3, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ऑफ डायगोनल ज़ीरो। तो अगर तो अब आप आइडेंटिटी में देखो, ये आइडेंटिटी में 1 1 होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ज़रूरी नहीं वो 1 हो, इट कैन बी एनी वैल्यू अदर देन 1। अगर 1 होंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, विच मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये स्पेशल केस है डायगोनल मैट्रिक्स का। So it's a special case, right? So sometime it can be confusing to see the diagonal elements. Let me write a matrix like 2 3 4 5 6 7. So can you find out the diagonal elements in this case? हमने diagonal elements की ये definition की है जिसमें रो और कॉलम की वैल्यू सेम हो। रो A11, A22, A represent the element of the matrix. In this case, if it is E, it's better to write like this: E11, E22। तो ये देख लें वो कहाँ पे है। So this is E11 और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम E22। तो जो डायगोनल बनेगा वो ये होगा। तो दिस इज डायगोनल, मेन डायगोनल, राइट। तो
it is easy to find के diagonal elements क्या होंगे, right? So जो मैंने matrix C लिखा, is it a diagonal matrix? Yeah. So of course it's not a diagonal matrix, right? अब आगे हम देख लेते हैं और matrix किस तरह का हो सकता है. तो rectangular matrix क्या होगा? Rectangular matrix, ठीक है, rectangle जैसा होगा. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज और कॉलम सेम ना हो. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ मैट्रिक्स एफ. तो इस केस में मैं ये करता हूँ 3 2 1. हम ऐसा कर लेते हैं 1 2 3. तो इफ़ यू सी इन दिस केस नंबर ऑफ रोज आर 3 1 2 3. 3 रोज और कॉलम कितने हैं 1 2. तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम दे आर नॉट इक्वल. तो दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स विथ m शुड नॉट बी इक्वल टू m, मस्ट नॉट बी इक्वल टू m. तो वो रेक्टेंगुलर होता है. ऑलराइट. सो जिसमें रोज और कॉलम सेम होंगे, यू गेस्ड इट राइट, इट्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. और जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे होंगे तो वी विल फाइंड आउट दैट स्क्वायर मैट्रिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो these are very important. What is a square matrix? In square matrix, number of rows must be equal to number of columns. So for example, square matrix हम लिख लेते हैं G. Simple case 2 2 3 4. Right? So it's a square matrix because it has 2 rows 2 columns. Right? तो जिसमें रोज और कॉलम सेम हो, दैट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इजी इनफ टू रिमेंबर. अब आगे चलते हैं. क्लास में हमने इसमें डिटेल से बात की थी. अब मैं दोबारा से थोड़ा सा इसको रिमाइंड करवा देता हूँ. रो मैट्रिक्स क्या होता है, राइट? अ रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच वी हैव सिंगल रो, जैसे एच जिसमें सिर्फ एक रो हो. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, राइट? इसमें कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 कॉलम. जैसे ऑर्डर लिखेंगे 1 रो 4 कॉलम, बट इट्स अ रो मैट्रिक्स बिकॉज इसमें सिर्फ एक रो है. सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें ऑफ कोर्स यू नो दैट जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, दैट्स कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल आई हमने आइडेंटिटी के लिए लिख लिया, लेट्स कॉल दैट जे. तो कॉलम मैट्रिक्स इस तरह का हो सकता है 4 5 6, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, राइट? 3 रोज हैं. रोज कैन बी डिफरेंट बट कॉलम एक होगा. दैट्स अ कॉलम मैट्रिक्स. अच्छा, अब और आगे चलते हैं. हमने देखा था गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्लास में ये मैट्रिक्स यूज़ किए हैं. लेट्स स्टार्ट विथ अपर ट्राइंगुलर, नॉट डायगोनल, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. ये क्या होता है? तो जिसमें फ्रॉम द वर्ड यू कैन सी के जिसमें अभी हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है और ये अपर ट्राइंगुलर क्यों बोलते हैं इसको. लेट्स कॉल दिस ए. तो इस केस में जो डायगोनल एंट्रीज होंगी, फॉर एग्जांपल लेट्स केस कंसिडर 3 क्रॉस 3 1 2 3, और उसके नीचे जो एंट्रीज होंगी ना सारी मेन डायगोनल के. सो दिस इज मेन डायगोनल इन ग्रीन. मेन डायगोनल के नीचे सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, और जो ऊपर एंट्रीज आ रही हैं फॉर एग्जांपल ये 4 3 2, ये नॉन ज़ीरो. इन दिस केस अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि जो मेन डायगोनल है इन दिस केस 1 2 3,
ये बनता है। इसके नीचे एलिमेंट सारे के सारे ज़ीरो हों। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 0 लिख दूँ, इज़ इट स्टिल अपर डायगोनल मैट्रिक्स? द आंसर इज़ यस। कंडीशन नीचे वालों पे है कि नीचे वाले सारे ज़ीरो, राइट। अच्छा, अब इसको और एलेबोरेट करते हैं। क्या अगर मैं सारे ज़ीरो कर दूँ, इज़ इट स्टिल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? द आंसर इज़ नो। ऊपर एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो एंट्री लाजमी होनी चाहिए। 2 4। अच्छा, सिमिलरली now we can discuss lower triangular matrix. You can pause the video and try to write a matrix by yourself and you will realize it's not difficult to write. So what is lower triangular matrix? In lower triangular matrix, once again, जो main diagonal होगा, let's take the same example, 1 2 3, इसके ऊपर जो एंट्रीज होंगी, इन दिस केस मेन डायगोनल के ऊपर, वो ज़ीरो होनी चाहिए, और इसके नीचे जो होंगी फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हों। तो अब ये लोअर ट्राइंगल बन रही है ना, ये ट्राइंगल बनेगी ऐसे, राइट। इफ़ आई ड्रॉ दिस, तो दिस विल बी ट्राइंगल, और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो दिस ऑल्सो लुक लाइक अ ट्राइंगल। ये अपर ट्राइंगल है और ये लोअर ट्राइंगल। ओके, व्हाट एल्स? हम लास्ट टू टाइप्स देख लेते हैं मैट्रिसेस की। पहली देखते हैं, लेट्स टेक 9, सो लेट्स कॉल इट 9। अभी हम देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक, व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इजी टू डिफाइन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्चुअली बिफोर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे आपको ट्रांसपोज बताना चाहिए, फिर मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता सकता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसपोज फर्स्ट। तो ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? तो ट्रांसपोज ऑपरेशन ये है कि जिसमें हम रोज़ को, मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम से चेंज कर दें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लेट्स डिफाइन अ मैट्रिक्स बी। उसकी मैं लिखता हूँ, ऐसे लिख लेते हैं 1 2, सिंपल केस ले लेते हैं 3 4, राइट। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो आई वुड राइट बी, और ट्रांसपोज के लिए ये वो टी लिखते हैं, बी ट्रांसपोज। ये कैसे लेंगे? तो ट्रांसपोज जो लेंगे वो ये करेंगे कि आप रो को कॉलम में लिख लो, या कॉलम को रो में लिख लो, आपकी मर्जी है। सो इन दिस केस आई एम राइटिंग रो इनटू कॉलम, तो रो का कॉलम लिख दिया। अब सेकंड रो क्या है? 3 4, तो उसको भी कॉलम में लिख लो। सो 3 4, इट्स अ ट्रांसपोज ऑफ पी। ठीक है जी। सो दिस इज ट्रांसपोज ऑपरेशन, जिसमें रोज़ को कॉलम से चेंज कर देते हैं। एक एग्जांपल और देख लें, 1 2 3 5 6 9। कैन यू फाइंड सी ट्रांसपोज? ओके, आप ये खुद से कर लें। अब आगे चलते हैं। अब नाउ आई कैन डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सो द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज डेफिनेशन 9 ऑफ अ मैट्रिक्स। वो ये है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स लेट्स सपोज बी डिफाइन करता हूँ और उसका ट्रांसपोज लेता हूँ एंड इट कम्स आउट टू बी बी, तो वो बी मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल इसके लिए मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ, बी लिखता हूँ। तो ऐसा करते हैं कि मुझे आई कैन राइट एनी नंबर्स ऑन द डायगोनल। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट 2 4, मैं कोई भी एक रैंडमली मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, राइट। तो सिमेट्रिक में ये होगा कि जो अपर एलिमेंट्स, अपर डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ 1 3 5,
तो यहाँ पे भी आई विल राइट लोअर पे 1 3 5। अब मैं इसका बी ट्रांसपोज लिखता हूँ एंड लेट्स सी इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट। बी ट्रांसपोज राइट। अभी जो हमने डेफिनेशन की है अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन रो को कॉलम में लिखेंगे। तो इन डूइंग सो इफ वी विल सी कि डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, बट लेट्स स्टार्ट। तो हम रो को कॉलम में लिख रहे हैं, इसको 2, लेट्स राइट 2 1 3, फिर 1 4 5 1, उसके बाद 4 और ऑरेंज में 5 and then 3 5 6 3 5 6 and if you have noticed कि इसमें diagonal elements वहीं पे हैं, right? So 1 3 5 1 3 5 अगर आप अब दोनों matrices को compare कर लो, right? तो इसमें each हर element जैसे 2 है 2 1 1 सेम है 3 3, तो इट मीन्स ये बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो दो मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं जब उनका हर एलिमेंट इक्वल हो। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये सिमेट्रिक है। लास्ट डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? तो लेट्स राइट स्क्यू, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक? लेट मी इरेज इट। तो let's write skew symmetric. So this is number 10. Skew symmetric में होगा ये कि अगर हम एक मैट्रिक्स C लेते हैं और उसका ट्रांसपोज लें and it comes out to be minus C, then it's skew symmetric. Let's see. तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ C और करता ही हूँ, चलें 3 क्रॉस 3 ले लेते हैं। करते ही हैं कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 लेते हैं, 0 0 0, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इन दिस केस में 1 -2, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि ये बिल्कुल नीचे हो, 0 डायगोनल एलिमेंट्स 1 -2 3, और इधर भी मैं लिख लेता हूँ -1 2 -3, राइट। तो इफ़ यू हैव नोटिस्ड मैंने जो एंट्रीज लिखी हैं और इधर भी सेम है बट विद ऑपोजिट साइन। अभी हम देख लेते हैं कि इज दिस सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट। तो मैंने खुद से अपने पास एक मैट्रिक्स लिखा है एंड लेट्स सी इफ इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट। तो रो को कॉलम में चेंज कर लें, 0 1 -2, फिर रो को कॉलम चेंज कर लें, -1 0 3, लास्ट में देखें 2 -3 0 2 -3 and 0. Now compare it, and if you compare you will see each entry have now a different sign, opposite sign है। यहाँ पे अगर +1 है तो ये माइनस है, -2 है तो ये +2 है। तो इट मीन्स आई कैन टेक माइनस कॉमन। अब मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो लेट मी चेक, ओके माइनस कॉमन लेता हूँ। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो नाउ यू सी के सी वापस आ जाएगा सारा के सारा, 0 तो चेंज नहीं होंगे माइनस कॉमन लेने से। माइनस कॉमन लिया तो ये एंट्रीज चेंज हो जाएंगी, ये +1 -2 +3, सो +1 -2 +3, दिस विल बी -1 माइनस कॉमन लिया है +2, ये -3 हो जाएगी। एंड नाउ कंपेयर इट, ये तो सेम है, सी है, सो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -c। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, so -c, so this is a skew symmetric matrix.
So this was the last definition. अब आप now you can practice chapter 7.1. I'm leaving one question for you. The question is following. Question says, is every skew symmetric? So क्वेश्चन ये है कि हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में is every skew symmetric matrix has zeros on its diagonal. It's on its diagonal. तो क्वेश्चन में ये पूछा है, क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ज़रूरी है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हों वो ज़ीरोज़ हों? इफ़ यू नोटिस, ये देखें ज़ीरोज़ है। तो नाउ कैन यू थिंक ऑफ अ मैट्रिक्स जिसके डायगोनल नॉन ज़ीरो हो और स्टिल स्क्यू सिमेट्रिक हो, और इज़ इट नॉट पॉसिबल? सो थैंक यू।